دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان ایک وسیع میدان میں فارس کا جرنیل نرسی اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس کے دستوں کی صحیح نفری نہیں لکھی۔ یہ لکھا ہے کہ نرسی کی فوج مسلمانوں سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ تھی اور وہ اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور اس میں سواروں کی تعداد زیادہ تھی۔ ہر سوار کے پاس ایک برچھی اور ایک تلوار تھی۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں 2 مورخوں بلازری اور ابو حنیفہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ فارسی جرنیل نرسی کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا اور اس کے ساتھ کسرا کے 2 ماموزاد بھائی بندویا اور تیرویا میمنا اور میسرا پر تھے۔ یہ دونوں فارس کے مشہور اور جارح جرنیل تھے۔ ہر لڑائی میں بندویا فوج کے دائیں پہلو پر اور تیرویا بائیں پہلو پر رہتا تھا اور یہ اپنے دشمن کو گھیرے میں لے کر ختم کر دیتے تھے۔ انہوں نے روم جیسی طاقتور فوج کو بہت بری شکستیں دی تھیں۔ نرسی ان دونوں جرنیلوں کے ساتھ مدائن سے آنے والی کمک کا انتظار اتنی بے تابی سے کر رہا تھا کہ ہر صبح ایک سوار کو مدائن کے راستے پر آگے بھیج دیتا کہ کمک دور سے آتی نظر آئے تو آ کر اطلاع کرے۔ نرسی کی اس فوج میں کچھ ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی جس سے فوج کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا۔ یہ صورت مروان شاہ اور جابان کے ان فوجیوں نے پیدا کی تھی جو نمارک کی لڑائی میں مجاہدین سے شکست کھا کر بھاگے اور سقاطیہ نرسی کی فوج کے کیمپ میں جا پناہ لی۔ شکست کی خفت کو مٹانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی بہادری بلکہ خونخواری کی ایسی خوفناک باتیں بتائیں جیسے مسلمان انسان نہیں جنات اور بھوت ہوں۔ بھاگے ہوئے ہر سپاہی کی زبان پر یہ الفاظ تھے، ہم جنوں بھوتوں سے تو نہیں لڑ سکتے۔ نرسی کے دستوں کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ نمارک میں فارس کے دونوں جرنیل پکڑے اور مارے گئے ہیں۔ جابان ابھی لاپتہ تھا۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ جابان رستم اور ملکہ فارس کے سامنے جانے سے گریز کر رہا تھا۔ اس سے نرسی کے دستوں میں مزید دہشت پیدا ہو گئی تھی۔ ایک روز نرسی اپنے دستوں سے خطاب کر رہا تھا، یہ سب بزدل ہیں جو اپنے جرنیلوں کو مروا کر بھاگ آئے ہیں۔ یہ بھگوڑے غدار ہیں۔ میرا حکم چلے تو میں انہیں مقدس زرتشت کی آگ میں زندہ جلا دوں۔ یہ غیرت والے ہوتے تو زندہ واپس نہ آتے۔ یہ اب عورتوں کی طرح ڈرے ہوئے بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کا حوصلہ بڑھائیں اور اپنا قومی جذبہ مضبوط کر کے عہد کریں کہ مسلمانوں سے شکست کا انتقام لیں گے۔ ان کی باتیں مت سنو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ شام کھانے کے دوران جرنیل بندویا نے جرنیل نرسی سے پوچھا کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کی آج کی تقریر سے اپنے سپاہیوں کا لڑنے کا جذبہ مضبوط ہو جائے گا؟ نرسی نے کہا، نہیں، میں ہر روز اپنے مخبروں سے سپاہیوں کے جذبے اور دیگر امور کے متعلق پوچھتا رہتا ہوں۔ ان سب پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو چکی ہے۔ خالد بن ولید کو یہ آسمان سے اتری ہولناک مخلوق میں سے سمجھتے ہیں۔ میں نے اسی لیے مدائن سے کمک منگوائی ہے کہ وہاں سے جو سپاہی آئیں گے وہ مسلمانوں سے بالکل ناواقف ہوں گے اور مسلمانوں کے خوف سے آزاد ہوں گے۔ جرنیل سے ترویا نے کہا، ورنہ ہمیں کمک کی ضرورت نہیں تھی، کمک کو پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ہم رستم اور ملکہ فارس کو اچھی خبر سنائیں گے۔ بندویا نے کہا، سقاطیہ کو ہم مسلمانوں کا قبرستان بنا دیں گے۔ ابو عبید کے مجاہدین کی پیش قدمی بہت تیز تھی لیکن راستے میں دریا حائل ہو گیا۔ ابو عبید نے اس خیال سے لشکر کو روک لیا کہ دن کی روشنی میں دریا عبور کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دریا عبور کرنے کے دوران دشمن آ جائے تو وہ تیروں اور پھینکنے والی برچھیوں سے سب کو دریا میں ختم کر سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں دریا عبور کرنا تھا۔ وہاں کشتیاں نہیں تھی جن کا پل بنایا جاتا۔ اتفاق سے ایک مقامی آدمی ادھر سے گزرا۔ اس نے بتایا کہ تقریباً 2 میل آگے کشتیوں کا ایک پل ہے جو فارس کی فوج نے بنایا ہے اور اس کے دونوں طرف دن رات 2 فوجی پہرے پر کھڑے رہتے ہیں۔ رات کو 4 جانباز مجاہدین کو آگے بھیجا گیا۔ پل سے ذرا ہی دور 3 مجاہدین چھپ گئے اور ایک پہرے داروں کے پاس چلا گیا۔ اس نے دونوں کو باتوں میں لگا لیا اور انہیں باتوں باتوں میں پل سے ادھر لے آیا۔ 3 مجاہدین جھاڑیوں کے پیچھے سے اٹھے اور ان دونوں فارسیوں کو دبوچ کر ان کے گلے گھونٹے اور مار دیا۔ ان کے کپڑے اتار کر 2 مجاہدین نے پہنے اور پل کی دوسری جانب چلے گئے۔ وہ سپاہی انہیں اپنے آدمی سمجھے۔ قریب جا کر مجاہدین نے ان دونوں کو خنجروں سے قتل کر دیا۔ ایک مجاہد پیچھے جا کر ابو عبید کو اطلاع دے آیا کہ راستہ صاف ہے۔ ابو عبید نے پیش قدمی کا حکم دیا اور پل پر آ کر بے خوف و خطر دریا پار کر لیا۔ جالینوس اپنے دستوں کے ساتھ مدائن سے چل پڑا تھا لیکن اس کے سامنے بڑا لمبا راستہ تھا۔ ابو عبید نے تو جالینوس سے پہلے سقاطیہ پہنچنے کی دوڑ لگا رکھی تھی۔ اگلی شام ابو عبید کا لشکر سقاطیہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت لڑائی شروع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب لشکر کو دشمن سے چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ قریب ہی ایک گاؤں میں گئے اور اعلان کیا کہ رات کو گاؤں میں کوئی بچہ بھی باہر نہ نکلے۔ اس کے ساتھ ہی گاؤں کے ارد گرد پہرے کھڑے کر دیے گئے۔ اس احتیاطی انتظام کے باوجود یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ فارسیوں کو مجاہدین
मुजाहिदीन के लश्कर का पता न चले। फारसियों की अगले दिन की लड़ाई की तैयारी को दरहम बरहम करने के लिए ये कार्रवाई की गई कि रात को जब फारसियों का लश्कर सोया हुआ था तो 20-20 मुजाहिदीन की दो पार्टियों ने एक दूसरे के बाद लश्करगाह पर शबखून मारे। दूसरी पार्टी ने ये कार्रवाई की कि शबखून के दौरान घोड़ों की रस्सियां काट दी और घोड़ों को तलवारों की नोकें चबोकर दौड़ा दिया। घोड़ों ने कैंप में कयामत बर्पा कर दी। इन दो शबखूनों ने फारसियों को जानों का भी नुकसान पहुंचाया और बहुत से सिपाही शदीद जख्मी होकर अगले रोज की लड़ाई के लिए ही नहीं बल्कि लंबे अरसे के लिए मैदान जंग में आने से माजूर हो गए। ये तो नफरी का नुकसान था। असल नुकसान ये पहुंचा कि इन दस्तों पर पहले ही मुसलमानों का जो डर सा बैठ गया था उसमें इजाफा हो गया। शबखून मुसलमानों का खुसूसी तरीका जंग था जिसमें उन्होंने गैर मामूली महारत हासिल कर ली थी। शबखून में बड़े ही मजबूत हौसले और जिस्मानी फुर्तीलेपन की जरूरत थी और ये औसाफ मुसलमानों में इसलिए थे कि वो एक नजरिए और एक अकीदे के फरोग और तहफ्फुज के लिए लड़ रहे थे। उनके ज़हन दिल में अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी थी। गैर मुस्लिम मौरखों ने भी लिखा है कि मुसलमान अपने मजहबी अकीदे के जुनून की कैफियत में लड़ते थे और दूसरी कौमों की फौजें अपने बादशाहों और जर्नैलों के हुक्म से लड़ती थीं। ये पहलू खास तौर पर पेश नजर रखने वाला है कि जिस दौर की ये दास्तान पेश की जा रही है उस दौर में मुसलमानों की कोई बाकायदा फौज नहीं हुआ करती थी। सिपा सालार से सिपाही तक सब रजाकार होते थे। सब अपनी रजा और रग़बत से एक जज्बे से सरशार मैदान जंग में जाते थे। इस जुनून, इस नजरिए और इस जज्बे का ये करिश्मा था कि अबू उबैद के जांबाजों ने एक ही रात में 2 शबखून मारे और दुश्मन की जंगी तैयारी और खैमागाह को दरहम बरहम कराए। एक यूरोपी तारीख नवीस ने अपनी अंग्रेजी किताब इस्लाम और आतिश परस्त में लिखा है कि फारसियों को इस कैंप में कई सिपाहियों को ये कहते सुना गया कि ये हमला आवर इंसान नहीं हो सकते। सुबह तुलू हो रही थी। जर्नैल नरसी, बिंदोया और तेरोया रात भर के जागे हुए अपने दस्तों को मुनज़्ज़म करने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। वो देखो, ये एक आवाज थी जिसमें घबराहट का लर्जा था। इस आवाज की घबराहट सारे कैंप में फैल गई। हर कोई उधर देख रहा था। 10,000 जांबाज का लश्कर जंग की तरतीब में आ रहा था। कैंप में खलबली बपा हो गई। हालांकि फारसियों की नफरी 30,000 थी जिसमें सवार ज्यादा थे। इनके तीनों जर्नैलों की हालत बहुत बुरी हो रही थी। नरसी बार बार कह रहा था कुमक नहीं पहुंची। दूसरे दोनों जर्नैल अपने दस्तों को तरतीब में ला रहे थे। जालिनूस कुमक लेकर मदाइन से चल पड़ा था लेकिन उसके सामने 2 पड़ाव की मुसाफत थी। मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने सिपाह सालार अबू उबैद से कहा, अबू उबैद, क्या तुम दुश्मन को मुनज़्ज़म और हमले में पहल करने का मौका दे रहे हो? उनकी तादाद और उनके घोड़े देखो। अबू उबैद मुजाहिदीन के लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम करके सफ आरा कर चुके थे। चौथा हिस्सा मुजाहिदीन का था जिसे अबू उबैद ने अपने पीछे रखा था। मुसन्ना बिन हारिसा की ललकार सुनते ही अबू उबैद ने अपने हिस्से को हमले का हुक्म दे दिया। उसने दाएं और बाएं पहलुओं के दस्तों को पहले ही कह रखा कि हमला होते ही वो दाएं और बाएं फैल जाएं और दुश्मन के अक़ब में जाने की कोशिश करें। मुसन्ना बिन हारिसा दाएं पहलू पर थे। वो खालिद बिन वलीद के पाए के सालार थे और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के मातहत उन्होंने रूमियों के खिलाफ घमसान के मार के लड़े थे और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से बड़े कारआमद दाव पेच सीखे थे। इसके अलावा मुसन्ना ने अहद कर रखा था कि फारसियों को फैसला कुन शिकस्त देकर आतिश परस्ती के बातिल को हमेशा के लिए खत्म करना है। 10,000 मुजाहिदीन का ये लश्कर मुसन्ना मदीना से लाए थे। पहले बयान हो चुका है कि मुसन्ना बिन हारिसा खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी में मदीना ये दरखास्त लेकर गए थे कि उन्हें एक लश्कर मिल जाए तो वो सल्तनत फारिस को बुनियादों से उखाड़ देंगे। उस वक्त हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बिस्तरे मर्ग पर थे। उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को वसीयत की थी कि मुसन्ना को लश्कर तैयार करके देना है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और मुसन्ना बिन हारिसा ने जिस तरह इराक के लिए लश्कर तैयार किया था वो पहले तफसील से बयान हो चुका है। अब सकातिया के मकाम पर मुसन्ना दाएं पहलू पर थे और उनके साथ सवार ज्यादा थे। उन्हें गालिबन मालूम था कि फारसी जर्नैल बंदोया और तेरोया पहलुओं से हमला करने के माहिर हैं। मुसन्ना अपने दस्तों को बड़ी तेजी से इतनी दूर ले गए कि फारसियों का पहलू उनके अंदर आ गया। बाएं पहलू पर एक सहाबी सालार सलीत बिन कैस थे। उन्होंने भी मुसन्ना बिन हारिसा वाली चाल चली और अपने दस्ते को दूर बाएं तरफ ले गए और फारसियों के पहलू को अपने घेरे में ले लिया। मुजाहिदीन का ये हमला ऐसा अचानक और इतना शदीद था कि फारिस की ये फौज ज्यादा देर ठहर न सकी। पीछे दरिया था। मुसन्ना और सलीत ने पहलुओं से फारसियों को घेरे में ले लिया। फारसी सिपाहियों का लड़ने का हौसला पहले ही कमजोर हो गया था। गुज़श्ता रात के शबखून ने अलग दहशत तारी कर दी थी। फारसी बढ़कर हमला करने की बजाय दिफाई लड़ाई लड़ने लगे और उसके साथ ही बाज ने भागना भी शुरू कर दिया। वो दरिया में कूद रहे थे।
ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मैदान फारसियों की लाशों से अट गया। नरसी का परचम गिर पड़ा और तीनों जर्नैल लापता हो गए। सिपाही दौड़ दौड़ कर मुसलमानों के पास आने लगे। ये मुकम्मल और फैसला कुन शिकस्त थी। इस फतह के बाद मुजाहिदीन फारसियों की खैमगाह और मैदान जंग से माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे और अशर बिन उसामा सिपाह सालार अबू उबैद को ढूंढते फिर रहे थे। सिपाह सालार अशर ने अबू उबैद को कहीं दूर देखकर पुकारा और उनके करीब जाकर घोड़े से उतरा। अबू उबैद ने अशर से पूछा, क्या खबर लाए हो इब्ने उसामा? अशर ने कहा, मदाइन से आने वाली कुमक यहाँ से एक पड़ाव दूर है। आज रात मदाइन के ये दस्ते बारसमा के करीब पड़ाव करेंगे। अशर ने मैदान जंग की हालत देखकर कहा, खुदा की कसम आपने आतिश परस्तों की कमर तोड़ डाली है। अबू उबैद ने कहा, ये अल्लाह का करम और तेरी मेहनत का करिश्मा है इब्ने उसामा। तू मदाइन से जो खबर लाया था वो हमारे काम आई। ये तेरी जासूसी का समर है। कुमक की नफरी कितनी है? अशर ने जवाब दिया, इतनी ही है जितनी को आपने यहाँ काट भी दिया है और भगा भी दिया है। उसका सालार जालिनूस है जिसे फारिस के लोग मैदान जंग का देवता कहते हैं। कुमक में सवार दस्ते प्यादों से ज्यादा हैं। अशर बिन उसामा बड़ा ही होशियार जासूस था जो मदाइन से खबर लाया था कि मदाइन से नरसी को कुमक जा रही है और नरसी सकातिया के मकाम पर है। अबू उबैद ने जब अपने लश्कर को सकातिया की तरफ कूच का हुक्म दिया था उसी वक्त अशर को उस इलाके की तरफ रवाना कर दिया गया था जिधर से मदाइन से सकातिया को कुमक ने गुजरना था। अशर के जिम्मे ये काम था कि कुमक के मुतालिक जो बहुत अहम इत्तला हो वो सकातिया पहुंचाए। अशर यहूदी पेशवा के बहरूप में गया और बर वक्त इत्तला ले आया कि कुमक बारसमा पहुंचने वाली है और रात वहां पड़ाव करेगी। अशर बिन उसामा ने एक और खबर सुनाई, लेकिन सिपाहसालार आप कुमक पर बेखबरी में हमला नहीं कर सकेंगे। मैंने रास्ते में इस सकातिया की लड़ाई से भागे हुए सवारों को बारसमा की तरफ जाते देखा है। मैंने दो सवारों को आपस में लड़ाई की बातें करते भी सुना है। मैं वहीं समझ गया था कि मेरे भाइयों ने सकातिया का मैदान मार लिया है। आपको संभल कर जाना पड़ेगा, दुश्मन ने कहीं घात न लगा रखी हो। मैदान जंग के भगोड़े घुड़सवार कुछ देर तक बारसमा पहुंच जाएंगे। उनसे इस लड़ाई की खबरें सुनकर वो अपने दस्तों को रात को भी तैयारी की हालत में रखेगा। अबू उबैद ने कहा, अल्लाह हमारे साथ है इब्ने उसामा, तू जा और कुछ आराम कर ले। हमने सूरज गुरूब होते ही बारसमा की तरफ कूच कर जाना है। अबू उबैद ने अपने सालारों मुसन्ना बिन हारिसा और सलीत बिन कैस को बुलाया और उन्हें बताया कि अशर क्या खबर लाया है। अबू उबैद ने दोनों सालारों से पूछा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम बारसमा की तरफ पेशकदमी करें, या तुम ये बेहतर समझते हो कि जालिनूस का यहाँ इंतजार किया जाए? मैं फौरन पेशकदमी करना चाहता हूँ। मुसन्ना ने कहा, बेशक यही बेहतर होगा। जालिनूस को भगोड़े फौजी खबरदार कर चुके होंगे और वो हमारे लड़ने के तरीके भी उसे बता चुके होंगे। अबू उबैद ने कहा, मुझे एक और खतरा नजर आ रहा है। अगर हम जालिनूस का इंतजार यहीं करते रहे तो हो सकता है वो मदाइन से मजीद दस्ते मंगवा ले। उसकी नफरी पहले ही से हमसे 2.5-3 गुना ज्यादा है। हमारी नफरी शहीदों और जख्मियों ने कम कर दी है और कम से कम 1000 मुजाहिदीन को यहाँ छोड़ना पड़ेगा। तमाम माल गनीमत और दुश्मन के सैकड़ों घोड़े यहीं रहेंगे। दोनों दरियाओं पर कश्तियों के जो पुल हैं उन पर भी कब्जा रखना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जालिनूस को मोहलत न दी जाए कि वो मदाइन से कुमक मंगवा सके। 1000 आदमी यहाँ छोड़ो, जख्मियों को मरहम पट्टी के लिए उनके पास रहने दो और कूच की तैयारी करो। चलने से पहले मैं उनके साथ 1-2 बातें करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले जालिनूस ने बारसमा के मकाम पर पहुंचकर अपने दस्तों को रोक लिया और पड़ाव का हुक्म दिया। लश्कर फौरन खेमे गाड़ने में मसरूफ हो गया। जालिनूस का खेमा खड़ा कर दिया गया और उसके अंदर गद्दों वाला पलंग और घरों के कमरों जैसा फर्नीचर रख दिया गया। अंदर रेशमी पर्दे लग गए। ये बहुत बड़ा खेमा था जिसके 2 हिस्से थे। अंदर से ये महल के 2 कमरे लगते थे। जालिनूस अपने खेमे में दाखिल होकर बैठा ही था कि उसके हिफाजती दस्ते यानी बॉडी गार्ड्स का कमांडर खेमे में आया और जालिनूस को बताया कि जहां वो कुमक लेकर जा रहे हैं वहां से जख्मी सवार आ रहे हैं। एक को वो अपने साथ लाया था। वो कोई जूनियर कमांडर था जो थोड़ा सा जख्मी था। जालिनूस बाहर निकल आया और गुस्से से उस जख्मी से पूछा कि सकातिया में क्या हुआ है। उस जख्मी ओहदेदार ने उसे तफसील से बताया कि अरबों ने गुज़श्ता रात 2 शबखून मारे और सुबह तुलू होते ही हमला कर दिया। जख्मी ओहदेदार ने लड़ाई की तफसील यूं सुनाई जैसे मुसलमानों की तादाद और जंगी ताकत बहुत ज्यादा थी। जालिनूस ने कहर भरी आवाज में कहा, उनकी तादाद मुश्किल से 10,000 थी और तुम कमोबेश 30,000 हरामखोर थे। अपने जख्म दिखाओ।
जालिनूस ने उसकी टांग का मामूली सा जख्म देखकर कहा, इतना सा जख्म खाकर तुम भाग आए? तुम 200 सिपाहियों के कमांडर थे, तुम अकेले नहीं भागे, तुम्हारे पीछे पीछे 200 सिपाही भाग आए। इतने में जालिनूस के दस्तों का एक अफसर उसके पास आया और उसे बताया कि उसे सकातिया के एक भगोड़े ने बताया है कि नमारक से अपनी फौज के आदमी भागकर सकातिया पहुंचे और उन्होंने नरसी, बंदोया और तेरुया के दस्तों में अरबी मुसलमानों की बहादुरी और खूंखारी की ऐसी खौफनाक बातें सुनाई कि सकातिया के दस्तों में बेदिली फैला दी। सकातिया की शिकस्त इसी का नतीजा है। उस अफसर ने कहा, वहां के भगोड़े हमारे कैंप में आ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि वो वैसी ही फर्जी कहानियां हमारे सिपाहियों को सुना रहे हैं। जालिनूस ने कहा, मेरा हुक्म सबको पहुंचा दो। हमारे दस्तों का कोई आदमी सकातिया के किसी भगोड़े को अपने खेमे में दाखिल न होने दे, न कोई किसी भगोड़े के पास जाए और न उसकी बातें सुने। सकातिया से आने वाले किसी भी फौजी के ओहदे का लिहाज न किया जाएगा। उन्हें अलहदा रखा जाए और तमाम दस्तों को एक जगह सफों में खड़ा कर दो, मैं वहीं आता हूँ।